Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Nusrat. I am your chemistry teacher. We are starting our new session 2020-21. Due to this pandemic situation, we will conduct online classes. So please listen to the lecture carefully and do your homework. This is my first lecture and we are starting from Introduction to Chemistry. First of all, the definition of chemistry. What is chemistry? Chemistry is the branch of science that deals with the properties, composition and structure of matter. Matter, as you very well know and you study in the early classes, what is matter? Matter is anything which have some mass and occupied space. This is called matter. And there are three states of matter: solid, liquid and gas. So the branch of science which deals with the properties, composition and structure of matter, it also deals the changes involved in the matter. There are various branches of chemistry. The main branches of chemistry are: number 1, physical chemistry; number 2, organic chemistry; number 3, inorganic chemistry; number 4, analytical chemistry; number 5, biochemistry; number 6, industrial chemistry; number 7, nuclear chemistry; number 8, environmental chemistry; and the last one, polymeric chemistry. Now we are going to explain one by one each branch of chemistry. Physical chemistry. It is the branch of chemistry that deals with the laws and the principles governing the combination of atom and molecules. You very well know about atom. Atom is the smallest particle. Atom is the smallest particle, and when atom combines, they form molecules. So in this branch of chemistry, physical chemistry, we study about how atom combines to form molecules and what principles and laws involves to make molecules. The next one is organic chemistry. Organic chemistry is the branch of chemistry that deals with the carbon compounds. It is with the exception of carbon dioxide, carbon monoxide, metal carbonates, bicarbonates and carbides. Generally, most of the consumer products are organic in nature. So it means that in this branch of organic chemistry, we study about the carbon compounds, and carbon along with hydrogen are called hydrocarbons. So in organic chemistry, we discuss about carbon compounds and hydrocarbons and their derivatives. The next branch is called inorganic chemistry, and it is the branch of chemistry which study the element and compounds which are obtained from non-living organism, that is from minerals. Means that till about 120 elements are discovered, except carbon. Almost all elements are discussed on inorganic chemistry. The next branch is called biochemistry. This branch of chemistry is the study of compounds of living organisms, that is plants and animals. It means इस ब्रांच में हम प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल होने वाले कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, और इसके साथ साथ इन कंपाउंड्स में होने वाले जो मेटाबॉलिज्म है
उनको भी इस ब्रांच में डिस्कस किया जाता है। अगली ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। दिस इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals or which study about the methods, techniques used to determine kind, quality and quantity। इस ब्रांच के अंदर हम मुख्तलिफ़ टेक्निक्स को स्टडी करते हैं जो कि डिफरेंट सैम्पल्स की काइंड, उनकी किस्म क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास मिल्क या वाटर के सैम्पल्स हैं तो इस ब्रांच में रहते हुए इनकी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम उसकी क्वालिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं और उसकी काइंड कौन सी है हम उसे मालूम कर सकते हैं। केमिस्ट्री की जो नेक्स्ट ब्रांच है वो कहलाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस विच आर गोइंग ऑन इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। यानी इस ब्रांच के अंदर हम इंडस्ट्रीज़ में होने वाले मुख्तलिफ़ केमिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं जो कि मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के बनने के दौरान अमल में आते हैं। मुख्तलिफ़ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे कि ग्लास है, सीमेंट है, पेपर, सोडा ऐश, मेडिसन, फर्टिलाइज़र एंड एक्सेट्रा, सोप इंडस्ट्री है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम इन तमाम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनको स्टडी करते हैं। बहुत बड़ी और वास्ट ब्रांच है जिसमें हम इन तमाम मुख्तलिफ़ जो प्रोडक्ट्स हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में बन रही होती हैं उनके प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडी द चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके कुछ एटम्स के न्यूक्लियस से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस की एमिशन होती है या कुछ ना नज़र आने वाली शुआएं जो हैं वो उनका इखराज होता है। उस एमिशन की वजह से न्यूक्लियस के अंदर मुस्तकिल जो है वो चेंजेस आ रहे होते हैं और उन चेंजेस को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटीरियल एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट स्पेशली द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस ब्रांच के अंदर हम मुख्तलिफ़ केमिकल मटीरियल्स या केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं उनके इफ़ेक्ट देखते हैं एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट में हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स शामिल होते हैं कि उनके ऊपर उन केमिकल कंपाउंड्स का, उन केमिकल मटेरियल्स का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। इसमें जो अहम टॉपिक्स हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर वो है पर्सनल हाइजीन, पॉल्यूशन एंड हेल्थ हैज़र्ड्स। पॉल्यूशन एज़ यू वेरी वेल नो कि तमाम जो केमिकल मटेरियल्स हैं, डिफरेंट केमिकल मटेरियल हैं, स्पेशली गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वगैरह, वो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का बाइस बनता है और उन्हीं चीज़ों से एनिमल्स और प्लांट्स को बहुत सारे जो उनकी हेल्थ को है नुकसानात होते हैं। इसके अलावा हम इस ब्रांच के अंदर पानी में यानी वाटर रिजर्वायर्स के अंदर होने वाली पॉल्यूशन जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़े से हो जाती है उनको डिस्कस करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये पॉलीमर से निकला है। पॉलीमर क्या है? पॉलीमर इज़ अ बिग मॉलिक्यूल, और ये बिग मॉलिक्यूल जो है प्लास्टिक का भी हो सकता है, पेपर का भी हो सकता है, सिंथेटिक फाइबर का भी हो सकता है। किसी भी पॉलीमर को बनाने का जो अमल है वो कहलाता है पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस बाय विच अ पॉलीमर
is made is called polymerization, and in this branch of chemistry we study about the polymer and their effect on the environment. These are the dear student, this is the end of today's lecture. So send your queries by WhatsApp if you have any. Please complete your homework before the next class.